Bismillahirrahmanirrahim. Now, dear fellow students and my colleagues, and again I will say that those who are interested in this subject of hematology, this is clinical hematology, which I am doing since 15 days continuously. I am trying to complete it in few days. The subject is very important, clinical hematology, because you have to face these type of the problems. And most of us will miss the diagnosis. And I have divided actually the lymphoproliferative disorders. They are solid type of disorders, and non-solid means that it is dynamic type of a disorders. The dynamic is concerned leukemias, acute lymphatic leukemias and chronic lymphatic leukemias. And as far as the predominant solid tumors are concerned, they are already been called lymphomas. I declared them lymphomas. And an account has been given previously with discussing a case discussion. And then furtherly, they are the tumors arising from the plasma cells. They are called plasma cell disorders. Today we are talking about this, and that is the plasma cell disorders. I am Professor Sayyid Ali Haidar. I am visiting professor of medicine at the Jinnah Sindh Medical University, Karachi. How many cases of the plasma cell disorders you have seen? What are plasma cell disorders? They are monoclonal neoplasms. They are related to each other by virtue of their development from the common progenitors. And what are the common progenitor? Is the B lymphocyte lineage. The multiple myeloma is in this category, rising from the different sides, not on the one side, the different sides, multiple sides, monoclonal although, but on the different sides. So they are called the plasma cell cytomas, or we can say the multiple myelomas. Another variant is Waldenström macroglobulinemia, which is less common. Primary amyloidosis is also included in this. Heavy chain complex diseases are also included in this. Like, for example, the monoclonal gammopathies and the paraproteinemias, or the plasma cell dyscrasias. Now, this has been actually researched in the last 30 days. Much discussion has been done about these disorders, because the plasma cell is actually derived from the B cell lineage, and their primary function is to produce antibodies. And the antibodies, you say, already you know that it is IgA or IgD or IgE or IgM. These are the antibodies they are secreting. So the different sides of the reticuloendothelial system, where the B lymphocytes converting into the plasma cells, and plasma cell has got definitely a normal function of producing the humoral antibody, humoral immunity. But in this case, the multiple sites are involved, and they secrete more and more and more and more. There are two types of the antibodies there. One antibody, you know about it. They are light chains antibodies. And that another antibodies which are you actually not come across over are the macromolecular disorders, the heavy chain diseases. I don't want to, confuse the persons. Actually, the etiology of these disorders, they don't know. Number one. Number two, these disorders are usually seen in old ages, middle to old ages. So this factor is age. As the age grows,
There are certain changes in the body which are coming. Apoptosis is going on, and during this process, again, I'll say the same thing. Whether the genetics is involved, plus the environmental influence, plus the initiating factors, and then it's causing the hyperplasia and the metaplasia and the anaplasia or dysplasia. If one is missing in the cycle, the end result will not be as a mass or a tumor. The predisposing genetic factors are usually operative, definitely. They are working on it. Markers are described, no doubt. The important thing in these cases are the protein part, the protein, spike-like protein in the electrophoresis, which is called M component. M designated for monoclonal, M component in most of these cases. And it is M component are the excellent tumor marker, although it is not specific, but it is a very important reflector of the plasma cell disorder. It can be seen, M component can be seen not in the plasma cell specific disorders, but you can see in less titer in lymphomas also, whether it is Hodgkin lymphoma or non-Hodgkin lymphoma. You can also see in chronic myeloid leukemia, breast cancer, coronary cancer, and also in cirrhosis and sarcoidosis and in some of the parasitic diseases, Gaucher's disease and the pyoderma gangrenosum, and number of the autoimmune conditions, including the rheumatoid arthritis. It is associated with the myasthenia gravis and the cold agglutinin disease, which I have discussed along the autoimmune disease, autoimmune hemolytic anemia. A very rare skin disease is also associated with M component in the plasmapheresis, and that is called the lichen myxodermatus. This is a papular mycinosis. It is associated with the M component, that is monoclonal gammopathy. As I said that exactly the initiating factor is not, we don't know. We don't know the exact effect. The radiations may be possibilities. The common affected, it is seen in farmers, woodworkers, leather workers, and those who are exposed to the petroleum type of the products. Possibilities are there. The study showed that these are the professions in which the old age people are affected. As far as multiple myeloma is concerned, males are more commonly affected than females. First of all, line up the disorders. First of all, the plasma cell disorders. First one is the multiple myeloma. Why it is called multiple myeloma? I have already discussed this thing. The median age is 60 years, 68 years, median age. So it is the tumor of the old age. More males are affected slightly more than the females. You know that this is B-cell malignancy is characterized by the abnormal proliferation of the plasma cell able to produce a monoclonal immunoglobulin, that is called M protein, which you can detect in the blood or in the urine. 3 to 9 cases per 100,000 population incidence. They are more frequently present in the old age, elderly, and I always say the modest male predominance. Multiple myeloma, to remember, diagnostic criteria or clinical presentative criteria is M-CRAB, M for monoclonal protein evidence in the urine or in the blood. Number 2, the calcium, because osteoclastic activity is more than the osteoblastic activity in this condition. Therefore, the hypercalcemia is a usual feature. Because of the excretion of the calcium, excessive, and because of the high viscosity of the monoclonal protein, that is M protein,
the chances of the renal failure are much. Because of the reticuloendothelial system and the medullary system is affected, the anemia is there. And because it is lysic type of the lesion in the bone pain are the usual features at different sites, but lower backache or middle backache are usual presentation. So M, crab, monoclonal protein, C for calcium, R for renal failure, A for anemia, and B for bone pain with lytic lesions. Lytic lesions under radiology. This is the diagnostic criteria for the multiple myeloma, M, crab. Now, diseases which are associated with this M protein may be neoplastic cell proliferation, multiple myeloma, cell-type plasma, cytoma may be present, Waldenström macroglobulinemia we should discuss for 5 minutes, and chronic lymphatic leukemia, which I already told you that this is the only leukemia which have got the very good outcome. Heavy chain diseases, you want to remember or do not want to discuss, that's in your own choice. And a primary amyloidosis. Secondary is all right, but primary amyloidosis is a part of it because the amyloid proteins, they are secreted from these type of cells. An undetermined significance, that is the monoclonal gammopathy of the undetermined significance, MGUS. Remember this terminology because it is the bridge between the active and inactive type of the multiple myeloma. Transient M protein, viral infection, post-valve replacement, solid malignancy like already said, the bowel cancer, breast cancer, immune dysregulations like AIDS, old age, and chronic inflammation of the different sides of the body. Cliniform is the multiple myeloma, solidly plasmacytoma may be present, although it is a dynamic tumor, or it may be present as a plasma cell leukemia. M protein is seen in 99% of the cases in the serum and the urine. Ig is more than 50%, Ig is 20 to 25%, IgE or IgD is 1 to 3%, and light chain other than that is 20%. This is how the plasma phases will tell you about this, because this is difficult to understand. What they are using terminology is M protein. The M is derived for the multiple myeloma, means that it is secreting from the plasma cell, means it is the part of the IgG or IgA or IgE or IgD, but not IgM. Not IgM. Only minus IgM. The M is of course macromolecule. The heavy chain, it is not light chain. The 1% of the cases are non-secretory, although 99% are secretory type of the disorder. Only 1% are non-secretory, only the mass lesions are seen, solid lesions. The clinical manifestation are related to the malignant behavior of the plasma cell and abnormalities produced by the M protein, depends upon it. So plasma cell proliferation, if occurs, it will cause the lytic lesion in the bone, it will turn on the bone, it will affect the what is called periosteum, and there will be painful disease definitely. If periosteum is involved, which is supplied by the somatic nerve, definitely there will be pain. Bone pain. Now, bone pain is a very typical pain here. Now, the pain usually involves the back and the ribs, and unlike the pain of metastatic carcinomas, you will see the metastatic carcinoma and the pain in the skeleton. Now, this pain is worse at the right. मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी नाइट के अंदर प्रॉब्लम आएंगे वो सारे के सारे जो है ना वो रिस्क फैक्टर्स हैं. अब चाहे वो आप नॉक्टर्नल मिग्रेन ले लें, वो नॉक्टर्नल डिस्निया ले लें, आप नॉक्टर्नल फला ले लें और नॉक्टर्नल ये ले लें, जो भी नॉक्टर्नल लेंगे, क्योंकि बॉडी जो है एट द टाइम में यू रेस्ट तो सारी चीज़ें काम डाउन हो जाती हैं, एवरीथिंग.
इन द बॉडी, एलिव सिस्टम जो होता है वो रेस्ट में चला जाता है, एंड उसके बाद भी अगर मसला कोई खड़ा हो जाता है तो वो फिर जो है वो एक प्रॉब्लमेटिकल मसला होता है। वो रिस्क होता है किसी डिजीज़ का, डेफिनेटली वो अंडरलाइन कोई डिजीज़ का रिस्क होता है। और यहाँ पे भी यही है कि नाइट के अंदर, दिन में इतना पेन नहीं होगा, इसको रात को पेन होगा। रात को जो है वो कभी इधर करवट लेगा, कभी उधर करवट लेगा, कमर के दर्द की बात हो रही है। और वो जैसे ही इधर करवट लेगा तो और ज़्यादा दर्द बढ़ जाएगा, तो दूसरी तरफ करवट लेगा तो और ज़्यादा दर्द बढ़ जाएगा। Because of the osteoclasts are more active in this disease. So the lactic lesions will definitely reflecting the pain, type of the pain the patient should have. Now plasma cell will cause the lactic lesion, it will cause hypercalcemia. If hypercalcemia occurs in this case because of the lysis of the bone, first of all, this is a possibility. The second theory is the same one, that the parathyroid-like hormone is also secreting by this, and it is causing the hypercalcemia. It is possible. And the bone marrow suppression can occur in this case. All three lines are affected: the anemia, leukocytopenia, and thrombocytopenia. तो उसके अपने जो है ना प्रॉब्लम्स हैं। फिर मोनोक्लोनल एम पैटर्न जो है एबनॉर्मल प्रोटीन है, ये नॉर्मल प्रोटीन तो है नहीं जो फाइट करे ह्यूमोरल एंटीबॉडी को। तो डिक्रीज लेवल्स ऑफ द नॉर्मल हीमोग्लोबिन की वजह से देयर विल बी एम प्रोटीन आया है, एबनॉर्मल प्रोटीन है, उसकी वजह से हाइपर विस्कोसिटी, रीनल फेलियर, बिकॉज ऑफ दिस conversion into the what is called amyloidosis. It is again the pattern of M protein which is deposited as amyloidosis in a different part of the body. So in this condition, because of the decreased level of normal hemoglobin, there are repeated chest infections, there are repeated urinary tract infections, and other parts are involved. It may be osteomyelitis. Renal failure occurs because of the many hyperviscosity, hypercalcemia, because of the ischemia, because of the more turnout of the bone, there are more chances of what? And that is uric acid. And again, the renal failure occurs because of the poor blood supply to the kidney. Anemia in 80% of cases is normochromic and normocytic as other chronic disorders. But it is a possibility that the specific type of the anemia you can see. Other than that, pancytopenia is definitely a very common entity of this condition. But the other series are also involving here. They got the megaloblastic anemia because of the folate deficiency or vitamin B12 deficiency. And associated with this, because of the abnormal proteins are secreting, the clotting abnormalities may be seen due to the failure of the antibody coated platelets to function properly, or to interaction of the M protein with the clotting factors 1 है, 2 है, 5 है, 7 है, 8 है. It may cause Raynaud's phenomena and impaired circulation, and what is called as cryoglobins. Cryoglobins are formed and is called choleagglutinin are formed, and in this situation the what is known as the autoimmune type of the hemolytic anemia can be precipitated. Neurological symptoms do occur in this condition. In minority of the patient because of the hyperviscosity. Hyperviscosity is a problem because water is concerned. You will say the viscosity is 1. The normal serum viscosity is 1.8, and in this condition is 5 or 6. Look, the level of the viscosity of the serum. So it will block the vessels.
It can cause the portal vein. It may involve the renal vein. It may involve the hepatic veins causing different type of syndromes, etc., etc. The neurological symptoms in this condition occurs leading to the lethargy, what is called weakness, depression, confusion, hyperviscosity, because of the blood is viscous and cannot go, it cannot fulfill the what is called the trance. You can say the pressure which should be maintained in the cranium cannot be maintained. Transcerebral perfusion is not done properly. On the one hand, on the central nervous system is concerned, the peripheral is concerned, the bone damage and collapse occur at different sites, and उसके बाद जो है ना वो ज़्यादा कॉर्ड कंप्रेशन के सिम्टम्स आ जाएंगे जो आपने पढ़े होंगे या आपको बताए जाएंगे। लेकिन ये जो है ना, ये याद रखिए, कोई आदमी है जिसकी एज जो है वो ज़्यादा है, वो परसिस्टेंटली आपके पास आता है, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन जो है ना वो बहुत सारी बनती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमने जो देखे हैं वो ये देखे हैं कि ओल्ड एज में पेशेंट आया है, उसको बैक पेन हुआ है, लोगों ने ऑस्टियोआर्थराइटिस बना दिया उसको, फिर उसको तहकीक भी नहीं किया, उसको मेडिकेशन देते गए, जो वो ऐसी मेडिसिन खाता गया, दर्द कम हो गया, फिर खा ली, फिर उसका वेट लॉस हो रहा था, फिर उसके दूसरे सिम्टम्स रिपीटेड इन्फेक्शन जब डेवलप हुए, जब वो रीनल फेलियर में जाने लगा, जब वो एडमिट हुआ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में, तो पता चला कि इसको जो है ना लाइटिक रीजन्स उनको मिल गए बोन के अंदर। फिर उन्होंने सोचा कि इसको जो है प्लाज्मा फेरेसिस करा के देखते हैं। तो इसकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मैंने पहले भी बताया था कि वो क्लासिक ट्रायड है मालोमा का, मल्टीपल मामलोमा का, कि या तो मैरो प्लाज्मा साइटोसिस होगा, यानी ब्लड के अंदर आपको प्लाज्मा सेल मिले जो नहीं मिलते होंगे, मोर देन 10%, 1 to 2% से ज़्यादा मिलते नहीं हैं। जो रिएक्टिव टाइप की कंडीशन है उनमें प्लाज्मा सेल मिल जाते हैं, मम्प्स में मिल जाते हैं, आपको मीजल्स में मिल जाते हैं, लेकिन वो 2-3% होते हैं। इसमें जो होते हैं वो 10% या इससे ज़्यादा हो, बोन, ये इसकी बात हो रही है, ब्लड की बात हो रही है। ब्लड के अंदर जो है ना वो अगर आपको 2% से कम या 1% से कम मिल जाते हैं तो ज़्यादा को रिएक्टिव है, लेकिन 2% से ज़्यादा मिल जाएं, थोड़े से 2 या 3%, तो इसका मतलब है कि आपको फिर क्या करना चाहिए कि प्लाज्मा फेरेसिस करके देखना चाहिए एक्चुअली कि मैरो प्लाज्मा साइटोसिस के लिए जाना चाहिए। तो मैरो अगर आप प्लाज्मा साइटोसिस के लिए जाएंगे तो उसमें 10% से ज़्यादा आपको प्लाज्मा सेल मिलेंगे। तो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हो गया ना 1। और दूसरा ये है कि लैटिक बोन लीजन मिलेंगे आपको, लाइसिस मिलेगा स्कल में, वर्टिब्री में या फिर स्पाइन में। ये नंबर 2 हो गया क्राइटेरिया। और थर्ड क्राइटेरिया ये कि सीरम या यूरिन के अंदर आपको एम कंपोनेंट का एविडेंस मिल जाए, या तो प्लाज्मा फेरेसिस कराया और आपको एम प्रोटीन मिल गए, या आपने यूरिन के अंदर बेंजोन्स प्रोटीन्स पकड़ लिए। दोनों सूरतों के अंदर ये थर्ड क्राइटेरिया भी पूरा हो जाएगा। तो 3 क्राइटेरिया जो है अगर इसका पूरा कर देते हैं तो ये डेफिनेट कंडीशन है, एक्टिव कंडीशन है प्लाज्मा सेल ट्यूमर की या मल्टीपल मायलोमा की। लेकिन ना वो इधर करा ना वो उधर करा, यानी मतलब कहने का ये आपको 10% से कम मिले मैरो सेल में, या ब्लड के अंदर आपको 1% से भी कम मिले, या आपको जो है वो डेफिनेटली आपको नहीं मिला, एम कंपोनेंट की जो परसेंटेज थी प्लाज्मा फेरेसिस में वो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आपको जोन्स प्रोटीन्स जो थे, बेंजोन्स प्रोटीन वो नहीं मिले, कोई एनीमिया नहीं मिला, कोई रीनल फेलियर नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, खाली जो है ना पेशेंट के अंदर जो है वो कोई हाइपरकैल्सीमिया भी नहीं था। लेकिन वो शो जो कर रहा था, वो ये शो कर रहा था पेशेंट कि उसके जो है ना बैकएक होगा बिकॉज ऑफ द रीज़न वो आप आगे अब आपने कराया और उस क्राइटेरिया को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, वो आपको क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाया। तो इस कंडीशन को कहते हैं MGUS, मोनोक्लोनल गामोपैथी ऑफ अनसर्टेन सिग्निफिकेंस। ये पेशेंट जो होते हैं इनको कोई थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनको क्या किया जाता है कि मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि कुछ ईयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं।
एक और बात यहाँ से जाते जाते आपको बता देते हैं इसके आगे चलने से कि ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी जो है रिप्रेजेंट करती है अल्कलाइन फोस्फेटेस को। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी हो तो फिर वो नहीं करती, ये बात ध्यान में रखिएगा। जितना आप डाइल्यूशनल करेंगे, दूसरी बात, सीरम को, उतना ESR कम हो जाएगा। जितना विस्कस करेंगे उतना ESR बढ़ जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए तो इसके अंदर क्या होना चाहिए फिर? तो अल्कलाइन फोस्फेटेस नॉर्मल होना चाहिए या नॉर्मल होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी तो होती ही नहीं इसमें, वो सप्रेस हो जाती है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होती है। तो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी रिप्रेजेंट करती है अल्कलाइन फोस्फेटेस को। फिर इसके अंदर जो है ना वो आपके थिकनेस ऑफ द ब्लड है, जैसे विस्कोसिटी बढ़ गई थी तो ESR बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बात दफ़ा 110 120 यानी वो लेवल का होता है जो कि SLE का लेवल होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको जो डिस्क्रिप्शन इन्होंने दे दिया है इसी के अंदर, बोन पेन पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्या होते हैं, आपको पता है कि बार बार फ्रैक्चर होगा। इन लाइन जो होता है फ्रैक्चर होता है ये, और ये ज़रा सी ट्रिवियल ट्रॉमा जो होता है वो उसको याद भी नहीं होता और फ्रैक्चर हो जाता है। वीकनेस है, फटीग है, सीरियस इन्फेक्शन है, रीजनल फेलियर है, और फिर ब्लीडिंग डायसिस है जो मैंने अभी बताया आपको, बिकॉज ऑफ द हाइपरविस्कोसिटी, बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द एबनॉर्मल प्लाज्मा प्रोटीन्स टू द क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये लैटिक बोन रीजन मैंने दिखाए हैं। अब यहाँ आपको देखिएगा, बड़ी ये देखिए जगह जगह जो है ना आपको लैटिक रीजन्स मिल रहे हैं इसमें। ऐसे केसेस बहुत सारे मैंने देखे हैं। मैंने जो देखा प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा मेटास्टाइजिंग टू द स्कल देखा है। मैंने जो है ना थायराइड कार्सिनोमा मेटास्टेटिक टू द स्कल देखा है। जो मैंने देखा वो मैं बता रहा हूँ। और इसी तरीके से मैंने जो है लैटिक जो है ना लीजन्स देखे हैं इन वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ द ट्यूमर ऑफ द लंग। अपनी लाइफ की बात कर रहा हूँ। और मल्टीपल मायलोमा में तो देखे ही देखे हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट होना चाहिए ये ख्याल कीजिएगा। सिग्निफिकेंट देखिए, इसके अंदर ऑस्टियोस्क्लेरोसिस नहीं हो रहा कहीं भी, यानी बोन जो है वो हाइपरडेंस नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी उससे। वो अगर होती इसके साथ लैटिक लीजन हो तो फिर पैकेट डिजीज हो जाती है। इसका मतलब पैकेट डिजीज में भी लैटिक लीजन होते हैं। तो इसको आप रूल आउट करेंगे, पंच आउट लीजन्स जैसे आपको नजर आ रहे हैं। इन डिजीज से आपको रूल आउट करने होंगे। अब यह है ना पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है और इन्वॉल्वमेंट है जो आपको नज़र आता है मुख्तलिफ एरियाज में, फीमर में, ह्यूमरस में, वर्टिब्री में 65%, रिब्स में 45%, स्कल में 40%, शोल्डर में 40%, पेल्विस में 30% और लॉन्ग बोन में 25%। ज़्यादा वर्टिब्रल कॉलम इन्वॉल्व होता है, अक्सर जो है ना वो बॉडी ऑफ दी वर्टिब्रल फ्रैक्चर हो जाती है इसके अंदर। और इसको कंफर्म करने के लिए अगर कोई पॉजिट्रॉन इमेजिंग टोमोग्राफी करे तो कॉस्टली प्रोसीजर है। तो आपको जगह जगह ये साइट्स मिलेंगी जहाँ पे ये देखिए जहाँ जहाँ मिल रही हैं ये साइट्स, वो उजागर कर देगा इसको कि कहाँ पे जो है ना लैटिक लीजन्स डेवलप हो गए या ख़तरा पैदा हो गया कि अब फ्रैक्चर हो जाएगा। लैब के अंदर मैंने कहा ये सर बहुत ज़्यादा होगा, पहले बता चुका, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इवन ल्यूकोपेनिया, रोलेक्स फॉर्मेशन इन द पेरिफेरल ब्लड स्पेस, बिकॉज ये कि विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है। नैरो प्लाज्मासाइटोसिस जो है इसके अंदर मोर देन 10%, हाइपर प्रोटीनीमिया हो गया, प्रोटीन ही प्रोटीन होंगे और क्या होगा, IgG होंगे या IgA होंगे, डिपेंड करता है कि कौन सा प्रीडोमिनेंट है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यानी आप मैनेजमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो कोई भी इम्यूनोग्लोबुलिन हो। हाइपरकैल्सीमिया बिकॉज ऑफ द लैटिक रीजन, बिकॉज ऑफ द अदर रीजन एज वेल। इस पर डिस्कशन अगर करूँगा तो आधा घंटा इसमें मैं लगा सकता हूँ बड़े आराम से, लेकिन मैं नहीं बात करना चाहता। फिर इसके बाद प्रोटीन यूरिया इससे भी होगा इसके अंदर, बिकॉज प्रोटीन जो है ये प्रोटीन ही है जो, और क्या चीज़ है। फिल्टर आउट होगा ज़्यादा से ज़्यादा तो प्रोटीन यूरिया हो जाएगा। और प्रोटीन यूरिया का मतलब ये होता है कि इट इज़ द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर द डैमेज टू द किडनी, ये याद रखिएगा। जितना प्रोटीन
यूरिनेट करेंगे आप या प्रोटीन यूरिया करेंगे उतना डैमेज होगा किडनी का। इसमें मिनिमाइज़ करने की कोशिश की जाती है, तो रीनल डैमेज को बचाने के लिए रीनल फेलियर में ना चला जाए। ये वो प्लाज्मा सेल है, इसके अंदर आप ये देखें बायलोब्ड न्यूक्लियस है इसका, और एक न्यूक्लियस ऊपर होता है एक नीचे होता है, ऐसा लगता है कि मिरर इमेज है एक दूसरे की। मिरर इमेज न्यूक्लियाई कहलाते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है, ये लिचमैन ने स्टैंड किया गया है। और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में पहले आपको बता चुका था कि इसको जो है ना, अगर मेजर क्राइटेरिया में रखें आप कि प्लाज्मा साइटोमा और टिश्यू बायोप्सी, या तो डायरेक्टली आपने कर दिया कहीं पे ये आपको मास मिला, या बोन मैरो प्लाज्मा सेल मोर देन 30% हो, 15 से ज़्यादा परसेंट से ज़्यादा हो, या मोनोक्लोनल एम स्पाइक मिल जाए आपको, ये अलग अलग लिखे हुए हैं इसमें, एम प्रोटीनीमिया मिल जाए जिसको कहते हैं, ये मेजर क्राइटेरिया है इसके। लेकिन माइनर इसके अंदर जो है वो ये है कि बोन मैरो प्लाज्मा सेल 10 to 30% है, ज़्यादा ना हो 15%, 16%, एम स्पाइक वो मिलती है बट लेस देन अबव, इसकी लेवल कम होते हैं, तो ये ट्रेसेस कह सकते हैं इसमें मिलती है। लाइटिक बोन लीजन्स होते हैं इनमें, माइनर क्राइटेरिया में लाइटिक बोन लीजन्स, इसको मेजर में नहीं रखा है, इन्होंने माइनर में रखा है। और इसमें जो है नॉर्मल आपको IgM मिलेगा, या इसमें जो पैटर्न है जो IgM का IgG का सीरम का, वो नॉर्मल मिलेगा, लेस देन 50 मिलेगा, IgA लेस देन इतना मिलेगा, IgG लेस देन 600 मिलेगा। बहुत सिग्निफिकेंट जो है ना वो नहीं चेंज आएगा इसमें। आपको कम से कम इसके अंदर या तो 2 मेजर होने चाहिए आपके पास डेफिनेट, या 1 मेजर या 2 माइनर होना चाहिए। अब इन्होंने लिखा हुआ भी इसी तरह कि 1 के साथ अगर B को आप डाल दें, या 1 के साथ C को डाल दें, आगे लिखा है इसमें, तो 1 मेजर और 1 माइनर किया हुआ है, फिर 1 मेजर 1 माइनर, इस तरह से इसको डालें। अगर 2 मेजर 1 में माइनर, तो बात खत्म हो गई फिर तो। लेकिन फर्स्ट इनमें से कुछ नहीं मिलता, लेकिन आपको A B भी मिलता है, C भी मिलता है, ये 3 A + B + C भी मिलता है, तो फिर भी ये सस्पेक्टेड मल्टीपल मायलोमा हो जाएगा। ये क्राइटेरिया है इसका जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ हेमेटोलॉजी इस्तेमाल करती है। ऑल 3 क्राइटेरिया मस्ट बी मेट एक्सेप्ट अनसीक्रेटेड, नॉन सीक्रेट ट्यूमर के अलावा बात हो रही है कि प्रेजेंस ऑफ सीरम और यूरिनरी मोनोक्लोनल प्रोटीन एम प्रोटीन, प्रेजेंस ऑफ द क्लोनिकल प्लाज्मा सेल्स इन द बोन मैरो, या आपने बायोप्सी टिश्यू बायोप्सी की उसमें आपको मिल गए, ये प्रेजेंस ऑफ द एंड ऑर्गन डैमेज related to the plasma cell dyscrasias such as increased calcium concentration or lytic bone lesion, anemia, renal failure, ये कोई एविडेंस मिल गया आपको। ये अगर तीनों मिल जाते हैं फिर तो डेफिनेटली श्योर अबाउट दिस ट्यूमर मल्टीपल मायलोमा। स्मॉल्डरिंग जो है ना मल्टीपल मायलोमा एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन है, बोथ क्राइटेरिया मस्ट बी मेट। इनमें दो क्राइटेरिया होते हैं कि सीरम मोनोक्लोनल प्रोटीन जो है उसके लेवल्स लिखे हुए इन्होंने 3 ग्राम, और बोन मैरो प्लाज्मा सेल मोर देन 10% है, लेस देन 30% या लेस देन 15% to 20% है। नो एन ऑर्गन डैमेज रिलेटेड टू द प्लाज्मा सेल। ये स्मॉल्डरिंग टाइप का मल्टीपल मायलोमा है एसिम्प्टोमेटिक। फिर एक और मल्टीपल मायलोमा की जो वेरिएंट है जो MGUS कहलाता है, मोनोक्लोनल गामोपैथी ऑफ अनडिटरमिन्ड सिग्निफिकेंस। ये था कि मुझसे 2 दफ़ा जो है FCPS के एग्जामिनेशन में पूछा गया, जब ये मल्टीपल मायलोमा तक ले आया था ढकेल के, तो वो यहाँ पे पहुँच गए। हम चाहते भी ये थे वो यहाँ पहुँच जाए। अब उन्होंने कहा कि ये नाम आपने कभी सुना है इसका? मैंने कहा बिल्कुल सुना है। ये क्या होता है? तो ये वो कंडीशन है जिसके अंदर जो है ना वो पैटर्न जो आपको मेजर है माइनर क्राइटेरिया अभी बताया है उस पर फुलफिल नहीं हो रही, इसमें फुलफिल नहीं हो रही है ये, बल्कि इसके अंदर सीरम मोनोक्लोनल प्रोटीन जो है वो लेस देन 3 ग्राम है, IgG की बात हो रही है ज़्यादातर, और बोन मैरो प्लाज्मा सेल जो है लेस देन 10% है, और नो एंड ऑर्गन डैमेज आपको मिला, नो लाइटिक लीजन इन द बोन मिले, कुछ नहीं मिला इसमें। ज़्यादातर पेशेंट जो है वो बोन पेन आपको बता देगा, या ये बता देगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो बता देगा वो सुमटाइजेशन टाइप के सिम्टम्स बता देगा,
ये पॉसिबल हो सकता है, मगर ये है कि जो स्पेसिफिक सिम्टम रिलेट कर रहे थे पहले डिस्कस किए जा चुके वो नहीं बताएगा इसमें। जब आप उसमें गए इन्वेस्टिगेशन में तो आपको जो चीज़ें मिली वो मैंने आपको बताई नहीं। ये 3 क्राइटेरिया इसके अंदर आपको चाहिए कि मोनो एम प्रोटीन मिला आपको, यस, लेकिन उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन वो कम मिली। बोन मेरो प्लाज्मा सेल्स जो थे वो लेस देन 10% मिले, लेकिन कोई एविडेंस नहीं था प्लाज्मा सेल डिस्क्रेसिया का ये एंड ऑर्गन को डैमेज करे। ये बड़ी अहम बात है ये। अब ये भी ओल्ड एज की डिजीज़ है, MGUS मगस, ठीक है ना जी। अब ज़्यादा लोग एक्सरे कराते हैं उसमें तो कुछ नहीं मिलता, अगर आप कराएंगे बोन स्कैन भी कराएंगे उसमें भी कोई ख़ास चीज़ चेंज नहीं मिलेगा, आपको लैटिक लीजन नहीं मिलेंगे। तो एम प्रोटीन 3% पीपल तक मिलेंगे 70 ईयर्स में, और 15% पीपल 7 ये उम्र नॉर्मली लोगों में मिलते हैं। तो MGUS इज डायग्नोज इन 67 ऑफ द पेशेंट विद एन एम प्रोटीन आ गया, एम प्रोटीन आया प्लाज्मा फेरेसिस के, और लोगों ने शोर शराबा शुरू कर दिया। भाई ऐसे नहीं होता, इसको आपको 3 इसके क्लिनिकल क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ेगा, तो फिर ये डायग्नोसिस बनेगी, ठीक है ना। अगर ये नहीं बनेगा तो खामखा शोर मचाने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए जो है ना मल्टीपल मालूमात तो नहीं बनेगा, लेकिन MGUS से बन जाएगा वो। तो प्रोटीन जो होते हैं इसके अंदर एम प्रोटीन मिल जाता है MGUS में, तो शोर मचाने की क्या ज़रूरत है। तो 10% ऑफ द पेशेंट विद दी MGUS डेवलप, ये जो है हर साल चांस होते हैं कि MGUS कन्वर्ट हो जाए, मल्टीपल मामलों में रिस्क फैक्टर है एज द एज ग्रोस। एवोल्यूशन इसकी करते हैं CBA डिफरेंशियल पैरेफरल ब्लड स्मेयर से। ब्लड केमिस्ट्री में कैल्शियम है, क्रिएटिनिन है, एल्ब्यूमिन, LDH है, बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन C रिएक्टिव प्रोटीन है, सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, और प्लस जो है वो आपको इस लेवल के अंदर जो है ना बोन मैरो एग्जामिनेशन करते हैं, बायोप्सी, क्वान्टिफिकेशन ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन्स करते हैं, यूरिन एनालिसिस 24 आवर कलेक्शन फॉर द इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इसके अंदर जो है इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसे आप कहते हैं उसकी भी की कर सकते हैं, यूरिन की भी, और आप जो है ना सीरम की भी कर सकते हैं। बाहर कहने के ये कि आप अगर चाहें तो डायरेक्टली बेंच जोन प्रोटीन भी देख सकते हैं। जहाँ तक मुझे याद है वो ये है कि 30 डिग्री से 70 डिग्री के दरमियान जब आप करते हैं, इसको गर्म करते हैं यूरिन को, तो कोई आपको एविडेंस नहीं मिलता। 30 डिग्री से नीचे चले जाते हैं तो आपको क्या होता है कि प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ये 70 डिग्री से ऊपर चले जाते हैं तो प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, तो ये कहलाता है बेंच जोन प्रोटीन्स। तो ये किसी ज़माने में खुद लोग हाउस ऑफिसर करते थे। सीरम फ्री मोनोक्लोनल लाइट चेन, ये भी आपको ज़ाहिर है इसके अंदर आपको मिलती है, मोनोक्लोनल लाइट चेन मिलती है। अगर इसको हिस्टोपैथोलॉजी हेमाटोलॉजी से इसको देख रहा है तो ये आपको बता देगा कि लाइट चेन डिजीज़ है, और मोस्ट प्रोबेबली मल्टीपल मायलोमा है। विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, पहले बता चुका। वो मैरो बायोप्सी कर सकते हैं आप, इसके अंदर आप फ्लोरेसेंस इन सिटू फेब्रिलाइजेशन FISH बड़ा स्पेसिफिक टेस्ट है ये। उसके अंदर ये मज़ीद आपको डिस्क्रिप्शन दे देगा प्लाज्मा सेल की एक्टिविटी के बारे में, वो करा सकते हैं। ये कॉस्टली प्रोसीजर है, कर सकते हैं। मेटास्टेटिक बोन सर्वे एंड प्लेन रेडियोग्राफ इंक्लूडिंग द ह्यूमराई एंड द फीमर बोन्स शुड बी परफॉर्म इन ऑल पेशेंट्स, एंड MRI CT और PET स्कैन और CT स्कैन शुड बी डन। अब ये आप करेंगे तो फिर आप इसकी क्लिनिकल स्टेजिंग करेंगे ना, अदरवाइज तो नहीं कर सकते। तो स्टेजिंग सिस्टम जो है इसका तो आजकल को काबिल कबूल है, वो ये है। स्टेज 1 में ये है कि बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन जो है 3.5 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो, और सीरम एल्बुमिन है जो है वो मोर देन 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर या इक्विवेलेंट हो। स्टेज 2 में कि नीदर स्टेज 1 और 2 के दरमियान है, और स्टेज 3 ये है कि बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन जो है मोर देन 5.5, और इसी तरीके से एल्बुमिन जो है वो बहुत ज़्यादा हो। तो मीडियम ओवरऑल सर्वाइवल रेट विद इंटरनेशनल स्टेजिंग सिस्टम जिसको कहा है, ये स्टेज 1 एंड 2 एंड 3 का जो सर्वाइवल रेट है परसेंटेज का 62%, 44% एंड 29 मंथ्स,
62 months, 44 months एंड 29 months। ये इस पर जो है ना इन्होंने निकाला है, ये स्टडी करी है जिससे ये बताया। तो 1 का तो बहुत अच्छा है अगर आप इसको मैनेज सही करें। पुअर प्रोग्रेसिव फैक्टर ये साइटोजेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, हाई बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, एडवांस्ड एज है, हाइपरकैल्सीमिया ये बैड साइन है, रीनल फेलियर के एविडेंस बैड साइन है, प्लाज्मा से ल्यूकीमिया अगर मिल जाए यानी भरा हुआ हो आपको अंदर, आपने जो पेरिफेरल ब्लड फिल्म की है उसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में प्लाज्मा सेल हो, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा सेल ल्यूकीमिया, और एबनॉर्मल पैटर्न पे ट्रीटमेंट की इंडिकेशन ये है कि हीमोग्लोबिन लेस हो गया हो, किसी का 10 ग्राम से लोअर हो रहा हो, और जो है वो हाइपरकैल्सीमिया का एविडेंस हो, रीनल इंसफिशिएंसी का एविडेंस हो, मोर देन 2 मिलीग्राम क्रिएटिनिन हो, लैटिक बोन लीजन्स सीवियर ऑस्टियोपेनिया के साथ हो, या एक्स्ट्रा मेडुलरी प्लाज्मोसाइटोमास हो, जो आपको ट्यूमर लाइक मास आपको मिल जाए बोन्स के अंदर या किसी और सॉफ्ट टिश्यूज में, उस सूरत के अंदर जो है ना ट्रीटमेंट शुड बी गिवन। इसके अंदर ये करते हैं जिनकी उम्र लेस देन 65 ईयर्स है, तो इसमें करते हैं इंडक्शन कीमोथेरेपी देते हैं आप साइक्लोफॉस्फेमाइड को डेक्सामेथासोन के साथ और वेरकेट के साथ, या फिर हाई डोज कीमोथेरेपी विद ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करें, यही आपको चॉइस होता है। और जिसकी उम्र 65 साल से ज़्यादा हो गई तो कन्वेंशनल कीमोथेरेपी तो ये है कि इसके अंदर जो है ना आप ज़्यादातर साइक्लोफॉस्फेमाइड को इस्तेमाल करते हैं डेक्सामेथासोन के साथ, लेकिन दूसरी ड्रग भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी ड्रग्स होती हैं जो इस्तेमाल करते रहे हैं, उनके रिस्पॉन्स आए हैं, बहुत अच्छे तो नहीं आए, जैसे मेलफलान है, प्रेनिसोलोन के साथ साइक्लोफॉस्फेमाइड दे दें, अगर कॉम्बिनेशन दे दें मेलफलान प्लस प्रेनिसोलोन प्लस साइक्लोफॉस्फेमाइड। फिर यह एक थेरेपी और भी थी VAD वैड थेरेपी, जिसके अंदर विनक्रिस्टिन है, एड्रियोमाइसिन यानी डॉक्सोरिबोसिन और D फॉर डेक्सामेथासोन, वैड VAD, ये भी जो है ना दी जा सकती है। लेकिन हाई थेरेपी आपको IMIDS, इसके अंदर बहुत सारी ड्रग इस्तेमाल करनी पड़ेंगी आपको, जिसमें साइक्लोफॉस्फेमाइड है, डेक्सामेथासोन है, वेरकेट, ये पूरी की पूरी यानी चेन है आपकी जो कीमोथेरेपेटिक एजेंट की है, ये पूरी की पूरी डालनी पड़ेगी। ये उन लोगों में है जिनकी एज 65 से कम है और उसकी अच्छा रिस्पॉन्स होता है। ये तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते ना इतनी सीवियर हाई डोज साइक्लोफॉस्फेमाइड और दूसरी ड्रग्स को। लेकिन पेशेंट मोर देन 65 ईयर्स को आप या तो MP दे दें, साथ में MPC जिसे कहते हैं, मेलफलान विद प्रेनिसोलोन विद साइक्लोफॉस्फेमाइड, या वैड थेरेपी दे दें विनक्रिस्टिन, एड्रियोमाइसिन, डेक्सामेथासोन के साथ। फिर इसके जो है ना वो सिम्टोमेटिक नेचर होते हैं कि कैल्शियम को ज़्यादा हो रहा है तो कैसे कम करेंगे, और ये रीनल फेलियर हो रहा है तो कैसे मैनेज करेंगे। फिर जो है ना आप जो है ना बोन के अंदर अगर आप जाएंगे, बोन की बात हो रही है जिसको मैंने अभी ये डिस्कस किया है आपसे, लेकिन बोन के अंदर आप जो है ना वो रेडियोथेरेपी कर सकते हैं लोकलाइज, उससे बहुत फ़ायदा होता है, लोगों को पेन कम हो जाता है। इसके अलावा जो है ना जो BMT के जो रिस्पांस है वो 65 ईयर से कम एज में ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। ऑटोलॉगस BMT की बात हो रही है, और अगर होमोलॉगस की करें बात आप, तो वो उसका रिस्पांस इतना अच्छा नहीं है जितना ऑटोलॉगस का है। और हाई विस्कोसिटी के लिए प्लाज्माफेरेसिस कर दीजिए, हमने दोनों ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांटेशन का भी दिया हुआ है, फिट फॉर द पेशेंट लेस देन 65, और एलोजेनिक स्टेम सेल के लिए जो है ना लेस देन 45 to 50 ईयर्स, ये इसमें ज़्यादातर फायदेमंद साबित होता है। इसके पुअर प्रोग्रेसिव फैक्टर्स हैं एलोजेनिक के, ऑटोलॉगस का टी-रेटेड मोर्टालिटी जो है वो सिर्फ 5 to 10% है, रिस्पॉन्स रेट हाई है इसका, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है। लेकिन एलोजेनिक में अगर आप कर रहे हैं तो उसमें जो है ना वो इसमें HLA इनकम्पेटिबिलिटी वजह से ज़ाहिर है आपको फिर कीमोथेरेपी भी साथ देनी होती है, तो मोर्टालिटी इसकी इसलिए ज़्यादा होती है, और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इसका जो होता है वो 20 to 30% से ज़्यादा नहीं होता। इसलिए ऑटोलॉगस जो होता है और एलोजेनिक जो होता है स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन,
इसको डिसाइड करता है ऑन्कोलॉजिस्ट कि क्या उसे करना चाहिए। अब ये न्यू मेथड्स भी आ गए हैं जिसके अंदर बहुत सारी इंटरफेरॉन्स को वो ब्रिज के तौर पे रखते हैं कि आप बीएमटी के लिए जब तक इंतज़ार कर रहे हैं तो आप डाल सकते हैं इसके अंदर, उसका रिस्पॉन्स अच्छा होता है। और रिड्यूस इंटेंसिटी एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन या थैलिडोमाइड जो एक ड्रग थी जो बहुत ही ख़राब ड्रग समझी जाती थी, ज़ाहिर है आपको याद होगा कि इसे बैन कर दिया गया था, ये हिप्नोटिक एजेंट था। रेवलिनेट है, अब पामीमाइड है और प्रोफिएसॉन इनहिबिटर्स हैं, प्रोटीनेसॉन इनहिबिटर्स हैं, जैसे बहुत ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं। और न्यू ड्रग्स लाइक एंटी इंटरल्यूकिन 6 वगैरह, ये इनहिबिटर्स, ये एंटी CD3 ये डारा टीमोमैब, ये कॉस्टली ड्रग है। एक एम्प्यूल जो है 80,000 रुपये का होगा। और ये जो है ना ये मेथड जिन्होंने बनाया तो दिए हैं, मसला ये है कि आपके पास कॉस्ट इफेक्टिवनेस का भी प्रॉब्लम है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट आप उसमें देंगे, रेडिएशन है, प्लाज्माफेरेसिस ज़रूरत हो तो दें, सेकेंडरी इन्फेक्शन को ट्रीट करें, हाइपरकैल्सीमिया को मैनेज करें। एक इसकी वेरिएंट है वेल्डन-स्टॉर्म मैक्रोग्लोबुलिनीमिया। इसको 1 मिनट के लिए डिस्कस करें कि ये क्या चीज़ है। ये याद देखिए ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की वेरिएंट है, एक्चुअली है ये प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर, लेकिन ये आया है नॉन हॉजकिन की सीरियल से, लीनिएज से। और इसके अंदर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें एम प्रोटीन्स मिलेंगे, इसमें हैवी चेन मैक्रोग्लोबुलिन मिलेंगे, इसीलिए मैक्रोग्लोबुलिनीमिया है। आपको जो है प्लाज्मा सेल के अंदर जो ट्यूमर के अंदर जो है ना आपको विस्ट्रोमेगेली नहीं मिलती, लेकिन वेल्डन-स्टॉर्म मैक्रोग्लोबुलिन में आपको विस्ट्रोमेगेली भी मिल जाएगी, लिवर स्प्लीन इनलार्ज मिलेंगे। आपको प्लाज्मा सेल यानी मल्टीपल मायलोमा में जो है ना लाइटिक लीजन्स मिल जाएंगे, बोन इन्वॉल्व होगी, सीवियरली इन्वॉल्व होगी, लेकिन वेल्डन-स्टॉर्म मैक्रोग्लोबुलिन में नहीं होती इन्वॉल्व। ये डिफरेंस है दोनों में। अगर बेसिकली आप देखें तो ये डिफरेंस है। अब ज़्यादातर ये प्रेजेंट करते हैं डिप्लॉपिया, गम ब्लीडिंग है, विजुअल इम्पेयरमेंट, डिप्लॉपिया, डिक्रीज विजन बिकॉज ऑफ हाई विस्कोसिटी, सेनाटिक रीजन, इजी ब्रूजिंग, ये जितनी चीज़ें लिखी हैं बिकॉज ऑफ विस्कस एम प्रोटीन है, बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल। और उसका जो वो ज़ाहिर फ्लैंक पेन है ये जाता है जब किडनी में, और किडनी में जाने के बाद एक्सक्रीट होने की कोशिश करता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, फ्लैंक पेन हो जाता है, हेड एक्स, मेंटल स्टेट। जब इतना विस्कस ब्लड जाएगा ब्रेन में, डेफिनेटली वो उसकी जो फ्लो होगी वो कम हो जाएगी। इससे नोजल ब्लीडिंग भी हो सकती है, नमनेस और टिंगलिंग ऑफ द एक्सट्रीमिटीज भी हो सकती है। अब ये सारे सिम्टम जो है ना ये नॉन स्पेसिफिक है एक्चुअली। असल में हुआ ये कि हाई विस्कोसिटी की वजह से हुआ। तो प्लाज्माफेरेसिस करें जब भी आपको मिल गए हैं। और स्पेसिफिक थेरेपी आप करना चाहते हैं इसके अंदर वेल्डन-स्टॉर्म के साथ, आप फर्ज करें आप करना चाहते हैं स्पेसिफिक थेरेपी, अगर आप करना चाहें इसको जो है ना किसी तरह से आउट करें निकालने के लिए, तो उन्होंने जो ट्रायल दिए हैं इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के ट्रायल्स हैं जिन्होंने वेल्डन-स्टॉर्म के लिए दिए गए। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट में इस विस्कोसिटी को कर लेते हैं और इसी तरीके से दूसरे जो सिम्टोमेटिकली प्रॉब्लम आ रहे हैं इसके अंदर वो कर लेते हैं तो बेहतर हो जाता है बंदा। टॉप मोस्ट तो प्लाज्माफेरेसिस है। सप्रेशन थेरेपी के लिए जो है ना उन्होंने बहुत सारे वर्क किए हैं इसके अंदर, किसी तरह इसको सप्रेस कर दें। तो इसलिए जो है ना वो अभी तक कोई ऐसी ड्रग स्पेसिफिक आप कह दें कि इन्वॉल्व होगी जो इसको सप्रेस कर दे, वो कोई भी नहीं है। हाँ, हम इंटरफेरॉन वगैरह को देख सकते हैं, ट्रायल दे सकते हैं। इसके अंदर स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन भी इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। एक इसकी वेरिएंट है पोएम सिंड्रोम से, आखिरी बात है मेरी, ये भी कहीं ना कहीं बात हुई थी, इसलिए मैंने बताना पड़ा कि FCPS पार्ट 2 का जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं और किसी खींच के लेके आए मल्टीपल मायलोमा पे, और मल्टीपल मायलोमा में ला के वो वेल्डन-स्टॉर्म में चला गया, वो डिफ्रेंशिएट करवा रहा है आपसे, वो MGUH से डिफ्रेंशिएट करा रहा है। अब वो जो है ना डिफ्रेंशिएट करते बाद दूसरा एग्जाम में अचानक उसको याद आता है, अब याद आता है या वो पढ़ रहा है या मैं नहीं पता, वो खुद पढ़ रहा है इसको, आई डोंट नो। वो पूछता है कि भाई कोई बंदा है जिसको जो है ना इस किस्म के सिम्टम डेवलप हो गए, कि उसको जो है ना वो स्प्लीन उसकी इलाज है, उसकी लिम्फोडेनोपैथी है, उसको पॉलीन्यूरोपैथी है, उसको मिक्स टाइप की,
और इसके अंदर स्किन चेंजेस भी उसको मिल रहे हैं, उसको नज़र आए हैं विद एम प्रोटीन का एविडेंस भी मिल गया है। और इसके अंदर ऑस्टियो स्क्लेरोटिक माइलोमा यानी हाइपरडेंस बोन मिल रही है, नॉट हाइपोडेंस। तो ये जो है ना, ये क्या चीज़ है, तो इसको कहते हैं पोएम सिंड्रोम, POEMS। P फॉर पोलिन्यूरोपैथी, O फॉर ऑर्गेनोमेगाली, E एंडोक्रिनोपैथी। एंडोक्रिनोपैथी इसके अंदर जो होती है वो कौन सी एंडोक्रिनोपैथी होती है, जो इसके अंदर मौजूद होती है, जो आपको नज़र आती है। एमनोरिया है मिसाल के तौर पे, गैलोकोमेसिया इन मेल एंड एमनोरिया इन फीमेल। ज़्यादा FSH का प्रॉब्लम इसके अंदर होता है, ठीक है ना। ज़्यादातर प्रोलैक्टिन है, FSH है, वही जो हम हार्मोन LH। और मेल के अंदर जो है ना वो डिस्टर्बेंस होता है एस्ट्रोजन के लेवल बढ़ने के साथ, जो है ना वो फिर गैलोकोमेसिया का प्रॉब्लम हो जाता है, डिप्रेस कर देता है टेस्टोस्टेरोन लेवल को। डायबिटीज़ मेलाइटिस भी इसके अंदर कॉमन है काफ़ी हद तक, टाइप 2 डायबिटीज़, नॉट टाइप 1। तो स्किन थिकनिंग है, डिजिटल क्लबिंग है, ये स्किन रीजन है, इसके पेरिफेरल एडिमा इसके अंदर मिलता है, और थर्मोसाइटोसिस के इवेंट्स भी मिलते हैं। तो इसके अंदर जो है ना पोलिन्यूरोपैथी होती है, जो मिक्स टाइप की होती है, ऑर्गेनोमेगाली मिलती है, जो मैंने बता दी, एंडोक्रिनोपैथी अभी बताई। और मोनोक्लोनल प्रोटीन का एविडेंस होना चाहिए आपको लैब के अंदर। और स्किन चेंजेस जो हैं उसके अंदर जो है ना वो आपको स्पेसिफिक अगर आप बात करेंगे तो हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपरट्रिकोसिस, स्किन थिकनिंग, जीरोसिस, थिकनिंग के साथ जीरोसिस, क्लबिंग, ये सारे चेंजेस आपको मिल रहे हैं जो कि मल्टीपल माइलोमा में नहीं मिलते। तो इसको जो मैनेज जो करेंगे वो उसी तरह से मैनेजमेंट होगा। इसका डिपेंड करता है कि इसके अंदर जो है ना जो प्रोटीन सिक्रेट किए गए हैं वो हैवी चेन है। हैवी चेन को जो आप की वजह से विस्कोसिटी अगर बढ़ी है, और विस्कोसिटी बढ़ी है तो प्लाज्माफेरेसिस करते हैं इसके अंदर, और प्लाज्माफेरेसिस करके इसको मैनेज करें इसी डिजीज़ को। और जो भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है, चाहे हाइपोथायराइडिज्म हुआ है इस पेशेंट को, चाहे डायबिटीज़ हुई, उसको मैनेज करें। अब आपको इन लाइनों पे मैनेज ही करना है इसको, और तो कुछ नहीं कर सकते। पोएम्स जो है ना इसकी वेरिएंट है, लेकिन मल्टीपल मायलोमा की। ये मल्टीपल मायलोमा एग्रेसिव फॉर्म में नहीं है, ये दूसरे पैटर्न पे चला गया है। आपको इसमें कोई ऑस्टियोलिटिक बोन रीजन नहीं मिलेगा, स्पेसिफिकली जो है ना हाई मोनोक्लोनल प्रोटीन नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको पोलिन्यूरोपैथी मिल रही है, ऑर्गेनोमेगाली मिल रही है, ऑस्टियोस्क्लेरोसिस मिल रहा है बोन के अंदर, और स्किन चेंजेस मिल रही हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की मैंने अभी आपको बताई हैं। तो पोएम इसलिए लाया गया है उन लोगों के लिए जो लोग जो है ना पास करना चाहते हैं लॉन्ग केस को। अब यहाँ पे आप लाजवाब हो जाता है ना, वो जो बंदा जो एग्जामिनर्स हैं, जो क्रॉस एग्जामिनर्स हैं, वो उसे खींच के लाया वर्डन स्टम तक, एक दूसरा खींच के लाया पोएम पर। उसने एक केस बताया कि अगर इसको ये होता है तो अब क्या होता, वो पोएम्स है, पोएम सिंड्रोम है। मैंने इसलिए आपको जो है ना यानी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल से लेके जो उससे जो अपर लेवल है उस तक और फिर हायर लेवल तक भी बता दिए। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये डिस्कशन ज़्यादा लंबा तो हो गया है, सही बात है, लेकिन इसने इसको कवरेज पूरा दे दिया है प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर्स को। आई होप कि आपने इसको समझने की कोशिश की होगी। इसको बुक से पढ़े तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, और इससे टैली करें इस वीडियो को। वमा अलैना